Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the first chapter of Goodbye Mr. Chips by James Hilton. Today's lecture consists of textual analysis of the novel. I hope you have purchased the textbooks so you can open your textbooks and follow the lecture. This is a very interesting chapter and it deals with the retired life of Mr. Chips. The writer tells us that the pace of life of Mr. Chips is very slow after his retirement. So the novel starts in a very smooth and easy go manner. The writer says, when you are getting on in years, but not ill, of course, you get very sleepy at times. The hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. Have you ever watched cattle grazing in the landscape? They very lazily, very leisurely move across and eat the grass. So he compares hours with cattle, that as cattle move slowly, hours move slowly. Mr. Chip's life is very slow now. It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. For Chips, like some old sea captain, still measure time by the signals of the past. And well, he might, for he lived at Mrs. Wickett's just across the road from the school. He had been there more than a decade, ever since he finally gave up his mastership. So very interesting paragraph. ये हमें बताता है कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो पिछले 10 साल से मिसेस विकेट के घर पर रह रहे हैं जब उन्होंने अपनी स्कूल मास्टरशिप को ख़त्म किया था, यानी जब वो रिटायर हुए थे। और अब कौन सा ज़माना चल रहा है? ऑटम टर्म ख़त्म होने वाली है और दिन छोटे हो रहे हैं और जल्द ही अंधेरा छा जाता है और गैस लाइट जलानी पड़ती है रात की आखिरी हाज़िरी से पहले। इस पैराग्राफ से हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर चिप्स माजी की यादों में रहते हैं और यहाँ पर राइटर उनको एक ओल्ड सी कैप्टन से कंपेयर कर रहा है। जैसे ओल्ड सी कैप्टन मूवमेंट ऑफ स्टार्स से अपना रास्ता और नेविगेशन जो है उसको जारी रखता है, इसी तरह मिस्टर चिप्स माजी के सिग्नल से अपनी ज़िंदगी की मूवमेंट को जारी रखते हैं। Now come to the text again. It was a Brookfield far more than Greenwich time that both he and his landlady kept. Mrs. Wickett Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. You might bring me a cup of tea before prep, will you? Look, students, again, call over, prep, all these terms are relevant to the boarding school, where in the evening students have to mark their attendance, they have to go for dinner, then they have to go for preparation for their homework, and then lights are off. एक और बात जो हमें यहाँ पता चल रही है वो ये है कि मिस्टर चिप्स के लिए ब्रूकफील्ड इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप लोगों के लिए ग्रीनिच टाइम GMT, जिससे पूरी दुनिया अपना टाइम मेजर करती है। ग्रीनिच लंदन में एक टाउन है जो टाइम के लिए इस्तेमाल की जाती है टर्म। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर फिर पोइट की तरह दोबारा वही लाइन इस्तेमाल करता है कि when you are getting on in years, it is nice to sit by the fire
and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding, dinner, call over, prep, lights out. Chips always wound up the clock after the last bell. Then he put the wire guard in the front of the fire, turned out gas, and carried a detective novel to bed. दोबारा राइटर बता रहा है कि जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं, गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो आप बहुत इजी और कंफर्टेबल फील करते हैं, लाइफ का पेस स्लो हो जाता है, तो आपको अच्छा लगता है कि आप फायर के पास बैठें और आराम से अपनी चाय पिएं। और यही काम मिस्टर चिप्स करते थे। वो डिनर की बेल भी सुनते, कॉल ओवर की बेल भी सुनते, प्रेप की बेल भी सुनते, और आखिर में जब लाइट्स आउट हो जाती, बत्तियां बुझा दी जाती बोर्डिंग स्कूल की, तो वो सो जाते। वो अपनी घड़ी को ब्रूकफील्ड स्कूल की बेल्स के हिसाब से चाबी देते थे, क्योंकि उस ज़माने में चाबी वाली घड़ी होती थी। देयर वर नो डिजिटल रिस्ट वॉचेस और क्लॉक्स एट दैट टाइम। उसके बाद वो एक डिटेक्टिव या जासूसी का नावल उठाते और अपने बिस्तर में ले जाते। Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world. यहाँ पर राइटर ने फिर कंपैरिजन किया है मिस्टर चिप्स का और एक मिस्टिक का। जैसे नींद उनके ऊपर ऐसे छा जाती जैसे मिस्टिक या एक सूफ़ी जो है वो अपनी परसेप्शन में एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाता है, क्योंकि उसके दिन और रात बराबर थे। वो डे ड्रीमिंग भी करता था और रात को भी ड्रीमिंग करता था। तीसरे स्टैंजा में फिर पोएम की तरह राइटर कह रहा है कि ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स। इंडीड डॉक्टर मैरीवेल said there was really nothing the matter with him. My dear fellow, you are fitter than I am, Merivale would say, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. डॉक्टर मैरीवेल जो हैं वो मिस्टर चिप्स के फैमिली डॉक्टर हैं। बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट आउटलुक है उनका। वो हर 15 दिन के बाद मिस्टर चिप्स को मिलने और उनका एग्जामिनेशन करने आते हैं। तो वो हमेशा उनको कहते हैं कि आप बहुत फिट हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं और आपको कुछ नहीं होने वाला। यू आर पास द एज व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेज। यू आर वन ऑफ फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई रियली नेचुरल डेथ। कि आप उस उम्र से भी आगे गुजर आए हैं जहाँ पर लोगों को ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं और आप अपनी तबई मौत मरेंगे। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल। और ये तब होगा अगर आप कभी मरे। और आप देखें कि इतने सालों के बाद भी हम ये नावल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि मिस्टर चिप्स नहीं मरे। ही इज़ इन आवर हार्ट्स। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड और व्हेन ईस्ट विंड्स रोड ओवर द फैनलैंड्स, मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट aside in the lobby and whisper, look after him. You know his chest, it puts a strain on his heart. Nothing really wrong with him, only anonymity. But that's the most fatal complaint of all in the end. जब फैनलैंड्स पर, मार्शी इलाकों पर सर्दी से तेज़ हवाएं चलने लगती तो मिस्टर चिप्स को अपने सीने में थोड़ा मसला महसूस होता। लेकिन डॉक्टर मैरीवेल ने कभी उनको नहीं बताया था कि आपको कोई इन्फेक्शन आपने कैच कर लिया है, बल्कि वो मिसेस विकेट को एक साइड पर ले जाकर कहते थे कि इनका ख्याल रखें कि उनके दिल पर प्रेशर आ रहा है और ये सब बुढ़ापे की वजह से है और ये सबसे बड़ी कंप्लेंट है। In this slide there are certain terms we will discuss. It will explain you some historical references. Anno Domini. Anno Domini is a Latin term in the year of our Lord, that is Holy Christ. इसको AD भी कहते हैं और क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं। ये रिफ़र करती है हज़रत ईसा की पैदाइश के